Welcome everyone in Core Java, and today's topic of discussion, as mentioned in the invite, is JDBC, that is Java Database Connectivity. So this is what we are going to study. Very important topic, because in each language you have a database. Because for an application, for any website, for any application, there are two core components. One core component is the UI, the front end, the graphical user interface, and another main component is the backend. So we'll divide this into three main components. So this is the scripting, then the program which we write, the programming, and the programming, the programmer fetches the data from the database. So there are three main components in any application, Android application or your any website which you make. So database forms a very crucial component. So the programmer, when he's writing the program, he needs to store the data in the database as well as fetch the data from the database. This is two-way traffic. This is two-way traffic. We need to save the data, what we can call as store. So the programmer in the so in our .java file, we will write a script, write a program that will help us to store the data in the database. The data we can fetch from the user. The data we can fetch from the user in the form of AWT swing. So we will write AWT swing forms, that will be our user interface. And using this user interface, we will accept the data from the user. And then store this data in the database. And we might also have to fetch the data. So we might also have to fetch the data from the database and do some processing on it. Okay, so for storing, for these I'll be needing the DML commands. So can you help me with some DML commands? DML commands, yes, tell me. Data manipulation language. So I'll be needing insert. Are we all there, guys? I'm not able to hear you all. So I'll be needing to store, I'll be needing the DML commands. Insert, update, delete, yes or no? And for fetching, huh? Yes, Najish? And I was telling the commands. Which one? Which commands do you know apart from this and DML? The merge, same in kind of this na? Merge command है. और merge is also part of DML command. merge भी है ना? है क्या? हाँ. I haven't gone through much of merge. Okay, I'll take that. But this will be our main operation: insert, update, delete. And for fetching we will use one very important command called as select. So select command will always be needed when we have to fetch some data from the database into our program. Am I clear with this? So this is where, yes, call command. ये कौन से कमांड ला रहे तुम पकड़ पकड़ के? कौन सा कॉल कमांड कौन सा हो गया? कौन से टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं आप लोग? सो जेडी तो वो कमांड नहीं है, वो स्टेटमेंट्स है. तो यहाँ पर हमारा जेडीबीसी का रोल प्ले होने वाला है. ये जो मैंने ओवल डाला, रेड ओवल, ये रेड ओवल हमको जेडीबीसी का काम करा के देगा. मतलब प्रोग्राम से डेटा डेटाबेस में स्टोर करना
और डेटाबेस से डेटा फेच करके प्रोग्राम में लाना। ये टू वे ट्रैफिक, ये जो ओवल वाला पार्ट है, ये ओवल वाला पार्ट इज JDBC एंड इट इज देयर इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव डेटाबेस कनेक्टिविटी। डीबीसी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जावा हो, पाइथन हो, डॉटनेट हो, PHP हो, कोई भी हो, सी हो, C++ हो, ये सब में डेटाबेस कनेक्टिविटी है। तो आज हम कौन सा लैंग्वेज से डीबीसी करने वाले हैं? किससे? तो हम लोग जावा से डीबीसी करेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी इज कॉमन टू ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो टुडे वी विल डू दिस डेटाबेस कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग. Okay, am I clear? Am I understood till here? Yes, What are we trying to achieve? yes, sir. Okay, very good. अब इसको कैसे अचीव करना है? जो हमारा डेटाबेस रहेगा ना, डेटाबेस, देखो हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो फिक्स है, हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो फिक्स है ना भाई? हाँ, कौन सा है जिसमें हम कोड लिखेंगे? वो जावा है। पर हमारा डेटाबेस है ना, डेटाबेस वो फिक्स नहीं है। हम डेटाबेस कोई भी यूज कर सकते हैं। डेटाबेस कैन बी MS Access, Microsoft Access also. Database can be MS Access, yes it can be. Database can be MySQL, yes. Database can be Oracle, yes. And जो लोग BCS वाले हैं, तो have the BCS people joined? BCS में no one joined. So BCS वालों को है Postgres. क्या है? ये है उनको। तो ये 4 टाइप के हमारे पास डेटाबेस है, और भी हो सकते हैं आपको चाहिए तो। सो डेटाबेस इनमें से कोई भी हो सकता है, आपके कॉलेज के फैकल्टी के कन्वीनियंस से या आपके कॉलेज के लैब एनवायरनमेंट के फैसिलिटी से। तो कुछ कॉलेजेस में ओरेकल इजीली अवेलेबल है, तो वो लोग ओरेकल को कनेक्टिविटी करते हैं। कुछ लैब में MS एक्सेस तो सब जगह अवेलेबल है ना। MS एक्सेस किसका पार्ट है? MS Access is a software package. From which package? Microsoft Office. MS Office का कंपोनेंट है ना ये। हाँ सर। तो MS Office तो हर मशीन में रहता ही है नॉर्मली, तो एक्सेस तो आपको सब जगह मिल ही जाता है। बट मैं जिस डेटाबेस पे कनेक्टिविटी करूंगा मेरे सेशंस में, my database connectivity will be with MySQL, will be with, because I feel this is the most convenient form which suits my style. तो सबसे आसान कौन सा है? और ये हमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हमको वैम्प है ना इस सेमेस्टर में। Are we using WAMP or not in this semester? Yes, sir. तो WAMP का जो M है, WAMP का जो M है, वो M क्या है? MySQL। तो हमको WAMP के अंदर MySQL मिल जाता है। तो WAMP हम यूज करेंगे PHP के लिए भी प्लस JDBC के लिए भी। समझा? नहीं समझा? तो ऑलरेडी हमारे पास WAMP है, तो हमको इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस, ओरेकल, पोस्टग्रेस की जरूरत नहीं है। पोस्टग्रेस सिर्फ BCS वालों के लिए है। जो BCS कर रहे हैं उनके लिए पोस्टग्रेस में कनेक्टिविटी करना है, बाकी सब के लिए चलेगा। तो व्हाट आर योर कॉलेज यूजिंग विद्या? Yes, sir. Which database is your ma'am using? Have you all done any practicals on JDBC? Have you all done practicals on JDBC? So I'm not attending the Java lectures. Isha Parekh? सर SQL यूज करती हूँ।
एसक्यूएल तो माई एसक्यूएल क्या एसक्यूएल? एसक्यूएल तो भाई ईशा पारेख एसक्यूएल क्या है पता है क्या? देखो ये जो है ना, ये तुम्हारे है ना मोबाइल मैन्युफैक्चरर समझ लो आप। ये आईफोन है, ये वन प्लस है, these are your mobile phone manufacturers assuming I'll give you all a relation between this and SQL। और ये हो गया आपका वीवो और ये हो गया सैमसंग, ठीक है। सो ये चार बड़े बड़े मोबाइल फोन वेंडर्स है इंडिया के। जो सिम कार्ड स्लॉट है, सिम कार्ड आजकल सब में माइक्रो सिम आ रहा है, यस और नो? हाँ सर। तो जो सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड वो सबका स्लॉट सेम है ना? क्या आईफोन का सिम कार्ड का स्लॉट अलग है, वन प्लस का अलग है, वीवो का अलग है और सैमसंग का अलग है? नहीं सर। The SIM card slot is same. So सिम कार्ड सबका सेम ही है ना? तो ऐसे ही डेटाबेस आपका अलग अलग होगा। MS एक्सेस होगा, MySQL होगा, पोस्टग्रेस होगा, ओरेकल होगा, ये सब अलग अलग होंगे। बट इनसे जो कनेक्टिविटी करना है अपने को, जो हमारी क्वेरी लैंग्वेज होगी, query language will be the same, that query language will be SQL, that will be। तो ऊपर में तो अगर हमको एक्सेस से भी डेटा फेच करना है तो विच लैंग्वेज विल बी यूज, विच क्वेरी लैंग्वेज विच विल वी विल यूज? SQL। MySQL से भी करना है तो SQL, ओरेकल से करना है तब भी SQL, और पोस्टग्रेस से करना है तभी भी SQL ही प्रोग्रामिंग ये क्वेरी लैंग्वेज होगा। तो SQL तो क्वेरी लैंग्वेज है और ये डेटाबेसेस है। तो मेरा क्वेश्चन ये था ईशा पारेख की, डेटाबेस कौन सा यूज कर रही है आपकी मैम? हेलो यस सर। ईशा पारेख कहाँ गई? गई क्या? वो पूछने गई है मैम। तो I will be using which database for our sessions? MySQL। It is readily available and very easy to access also। तो ये हमारा डेटाबेस होगा, तो हमारा डेटाबेस होगा MySQL। ठीक है, ये हमको WAMP में मिल जाएगा, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ WAMP। तो एज वी हैव इंस्टॉल्ड WAMP, we will have access to MySQL also। Am I understood so far? So what we are trying to achieve and which database we will be using? Okay। अब इसके अंदर एक और चीज है, I'll share some theory part with you all guys। I'll share some theory things, I'll share some theory things for you all। I have few theory stuff, let me fetch it for you all। Okay, JDBC 6 semester में, JDBC 6 semester। So I've shared you all few documents guys, if you would help me and open those documents, तो उसमें से I would want you all first to open JDBC steps वाला। कौन सा? JDBC steps खोलो। ओपन फॉर्म।
हाँ वेरी गुड। तो जैसे हमने उसका किया था ना, AWT स्विंग का स्टेप्स किया था हमने, याद है? हाँ। वैसे ही हम लोग इसके भी स्टेप्स पढ़ेंगे, 6-7 स्टेप्स है इसके अंदर, वो हो गया तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। ओके okay, before that let me help you all with one more thing which will help us in our, एक और चीज आसान कर लेते हैं। ओके, which sport are you all fond of playing or watching or following on social media? Badminton. Badminton. Yes, okay. Badminton, you all are badminton. ओके, और कोई स्पोर्ट, ऐसा कोई म्यूचुअल स्पोर्ट बोलो ताकि मैं भी इसमें इंडल्ज हो सकूं। क्रिकेट। ले लो सर। क्रिकेट ठीक है ना, क्रिकेट इज the second most widely played sport on the planet, so and the most widely played in India, cricket. So cricket में I'll take these two superpowers of world cricket, ठीक है? तो ये दो सुपर पावर्स है वर्ल्ड क्रिकेट के, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये दो टाइप के क्रिकेटर्स होते हैं, है ना? तो अभी मैं आपको मैं आपको चार क्रिकेटर्स के नाम लिखूंगा, आपको उनको फिट करना है उसके मैट्रिक्स में। तो ये मैट्रिक्स हो गया एक, ठीक है? तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, तो आपको उनको उनके स्लॉट में फिक्स करना है। Okay, so the first ball player I will be writing over here is Bumrah. Tell me, which cell will you put? Bowler. बॉलर वो है, दो बॉलर है, हाँ? Indian. यस परफेक्ट, तो ये जाएगा इस स्लॉट में। और ये Indian bat. वेरी गुड। और ये डेविड वार्नर, Yes. तो वो कहाँ जाएगा? Australian bat. ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, plays for Hyderabad, Yes. and Mitchell Stark, you all know Mitchell Stark, he is the brother of Tony Stark, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये आपको समझ में आया? तो मुझे इसमें ये प्रूव करना है कि बैट्समैन बॉलर दोनों कंट्रीज में है, क्या इंडिया में सिर्फ बॉलर है और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बैट्समैन है? माय क्वेश्चन इज, बैट्समैन और बॉलर दोनों कंट्रीज में है, क्या यू विल रिलेट इंडिया विद बैट्समैन एंड ऑस्ट्रेलिया विद बॉलर? दो कंट्री में सर। हाँ, दोनों कंट्री में है। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? इंडिया हैज ओनली बैट्समैन? No. No. No, right? Is this statement true? Australia has only bowlers? ये भी नो। तो ट्रू क्या है? इंडिया हैज बोथ बैट्समैन प्लस बॉलर, ये ट्रू है। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया हैज, yes, no, maybe I all able to differentiate between these statements? Yes. है ना? यहाँ पर क्या था? Has only, तो ये नो था, तो दोनों में है।
तो ऐसे ही अभी इस एग्जांपल को हम मैप कर, अब इस एग्जांपल को हम मैप करेंगे ओके। आई विल कम टू दिस ग्राफ अब इन अ वाइल। उसके पहले थोड़ा और आई नीड सम क्लैरिफिकेशन, तो उसके पहले थोड़ा और मुझे चाहिए क्लैरिफिकेशन तो ये करते हैं। ओके अभी हम करते हैं क्वेरी टाइप्स। क्या करते हैं? क्वेरी के टाइप्स, ठीक है। तो क्वेरी के टाइप्स में है ना, एक टाइप है सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट। क्या है? तो क्या है? व्हाट विच इज सिलेक्ट क्वेरी? सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है? द क्वेरी whose first keyword which whose what is, जिस क्वेरी का पहला कीवर्ड सिलेक्ट हो, क्या क्या बोलते हैं उसको? तो फिर नॉन सिलेक्ट कौन सी हुई? हाँ, नॉन सिलेक्ट क्या हो गया? नॉन सिलेक्ट जिसका फर्स्ट कीवर्ड ना हो। यस, जस्ट इज नॉट सिलेक्ट। तो वो क्या कीवर्ड हो फिर? तो सिलेक्ट नहीं हो तो क्या हो? वो या तो इंसर्ट हो, या अपडेट हो, या डिलीट हो, या क्रिएट हो, जो भी हो, बट सिलेक्ट नहीं हो। क्या नहीं हो? सिलेक्ट को छोड़ के कोई भी हो तो वो किस में चला गया? आया समझ तुमको? ये दो समझ में आया? ओके। और दूसरा टाइप का क्वेरी है स्टैटिक और डायनेमिक। क्या है? स्टैटिक और डायनामिक। हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक। सो समझ में आ रहा है तुमको ये? हाँ सर। तो स्टैटिक और डायनेमिक में क्या क्या है? जिस क्वेरी का वेयर क्लॉज हेलो, वेयर क्लॉज का वैल्यू इज नोन टू प्रोग्रामर, या नहीं, वेयर क्लॉज भी नहीं, इसको हम क्योंकि इंसर्ट में भी तो वेयर तो है नहीं। values known to programmer is your static query। तो जैसे फॉर एग्जांपल where e number equals to 10, तो कौन से एम्प्लॉय नंबर का डेटा फेच कर रहे हैं हम लोग? तो प्रोग्रामर को वो मालूम है क्या पहले से क्वेरी लिखते वक्त? while writing the query the values are known to the programmer। वो क्वेरी क्या बन गई? स्टैटिक। तो उसका एक एग्जांपल मैंने ये दिखाया आपको कि जब हमको किसी को रिकॉर्ड सर्च करना है और मुझे वो एम्प्लॉय का नंबर मालूम है कि मैं किसका रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूं, तो वो क्या बन गई? स्टैटिक। कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल? हाँ, your e-name equals to
एलिस। तो ये सब क्या है? स्टैटिक। जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, insert into emp values 101 Alice and 800. So are the values known to me which I am inserting? Yes or no? Yes, sir. Such query is called as static queries. Is called as. And when the values are not known is called as dynamic query. As simple as that. When the values are not known to the programmer, जैसे ई नंबर क्वेश्चन मार्क मुझे मालूम नहीं है, किसका निकालना है, ई नेम मुझे मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, क्या इंसर्ट करना है, आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। When writing the query, the values are not known to the programmer, they have to be accepted from the user। प्रोग्रामर को मालूम नहीं है, from the user। अब वो आप कमांड लाइन से लो या फिर आप कंसोल से लो, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, कंसोल से लो उसको, या फिर AWT स्विंग से लो, पर आपको मालूम नहीं है कि उसके वैल्यूज क्या है, तो उसको बोलेंगे डायनामिक क्वेरी। आया समझ में? Are you able to get the difference between static and dynamic query, guys? Yes, sir. Everyone? So what is a static query? Tell me. Static queries are those which Yes, tell me. which values are known to the programmer. Yes, correct. And what is dynamic query? The values which are not known to the programmer. So how will we accept the values then? Accepting by console, swing or हाँ। AWT. तो हम यूजर को बोलेंगे SOP से प्लीज एंटर द ई नंबर, क्या बोलेंगे यूजर को, system.out.println, उसको मैसेज देंगे प्लीज एंटर एम्प्लॉय नंबर, उसको स्कैन करेंगे स्कैनर से। तो वो टाइप के वैल्यूज जो हमको यूजर से लेने हैं और वो वैल्यूज को क्वेरी के अंदर डालना है, ऐसी क्वेरी को क्या बोलेंगे? Dynamic query. और जो वैल्यूज मुझे पहले से मालूम है, क्वेरी लिखते वक्त मुझे वैल्यूज मालूम है, उसको क्या बोलेंगे? Static query. समझ में आया? Now can you tell me the 4 types of queries? पहला, तो what is select query? What is select query? Tell me what, sir? We want to fetch, we use select. The query whose first word is select. Yeah, it is used to fetch data from, वो तो ठीक है, वो तो मालूम है, it is used to fetch data from database, वो तो ठीक है, वो तो टेक्निकल पार्ट ठीक है उसका, it is used to fetch data Used to fetch. from database, हाँ ठीक है, वो तो समझ में आ गया। तो बट हम मैं किस पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ? सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है? इसका फर्स्ट कीवर्ड सिलेक्ट होता है। नॉन सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है? तो सिलेक्ट नहीं होता। उसके अलावा कुछ भी हो, क्रिएट हो, अपडेट हो, ऑल्टर हो, इंसर्ट हो, डिलीट हो, कुछ भी हो, बट सिलेक्ट ना हो, तो वो क्या हो गया? नॉन सिलेक्ट। ओके, स्टैटिक क्वेरी कौन सी होती है? टाइप 3। इसकी वैल्यूज प्रोग्रामर को पता होती है। और डायनेमिक क्वेरी क्या होती है फिर बोलो? इसकी वैल्यूज प्रोग्रामर को नहीं। ब्यूटीफुल। अब आ जाओ वापस इस पे आ जाओ, ठीक है? तो अभी मैं फिर से ग्रिड बनाने वाला हूं, ग्रिड। तो क्या है इधर? सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट, और ऊपर क्या रहेगा? स्टैटिक और ब्यूटीफुल।
तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वंस यू अंडरस्टूड इट, नो थिंग्स आर वेरी रोजी। सिर्फ अंडरस्टैंड करने की देर है, उसके बाद सब आसान हो जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेरी, आप लोग बोलो कि कौन से डालना है खांचे में उसको। ये कहाँ जाएगी? सिलेक्ट स्टैटिक, क्या बात है, बेहतरीन, गुड वन, बेस्ट वन। ठीक है, आराम से, सबर सबर सबर। हाँ, ये क्या है? क्या ये? क्या ये क्या है? नॉन से डायनामिक, ब्यूटीफुल, क्या बात है, बेहतरीन। ठीक है, वेरी गुड। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ सिलेक्ट डायनामिक? वेयर डी नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या है? तो ये है सिलेक्ट डायनामिक, ठीक है। एंड कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ नॉन सिलेक्ट स्टैटिक? Insert into EMP values 101 Alice and 800, ये क्या है? इधर जाइए। आ रहा है समझ में? तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इज सिलेक्ट स्टैटिक एंड नॉन सिलेक्ट डायनेमिक, ये बोलना सही रहेगा? ये स्टेटमेंट सही है क्या? स्टैटिक क्वेरीज आर सिलेक्ट ओनली, ऐसा बोलना सही है? ऐसा बोलना सही है क्या? नहीं। और अगर कोई ऐसा बोले कि डायनेमिक क्वेरीज आर नॉन सिलेक्ट ओनली, ऐसा बोले तो? और अगर कोई ऐसा बोले डायनेमिक क्वेरीज आर नॉन सिलेक्ट ओनली, ऐसा बोले तो? तो उसको भी हम नो बोलेंगे। और अगर कोई बोले स्टैटिक क्वेरी इज सिलेक्ट एंड नॉन सिलेक्ट बोथ, so we were at this slide here. So static queries are both select plus non select, क्या बोलेंगे इसको? yes. और dynamic queries are both select and non select, क्या बोलेंगे उसको? ठीक है। अब याद रखो इसके लिए हमेशा, जहां पर स्टैटिक क्वेरी होगी ना, स्टैटिक क्वेरी, वहां पर हम एक जेडीबीसी का
एक इंटरफेस है स्टेटमेंट, क्या है? तो स्टैटिक क्वेरी को किससे हम रिलेट करेंगे हमेशा? स्टेटमेंट से। और डायनामिक क्वेरी को रिलेट करेंगे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट से। किससे? आ रहा है समझ में? स्टैटिक क्वेरी को किससे रिलेट करेंगे हमेशा? स्टेटमेंट। और डायनामिक क्वेरी को प्रीपेयर्ड। तो ऐसा बोलना सही है क्या कि स्टेटमेंट विल बी यूज फॉर सिलेक्ट एंड प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट विल बी यूज फॉर नॉन सिलेक्ट? ऐसा बोलना सही है? Statement will be used for select only and prepared statement will be used for non-select only. ऐसा बोलना सही है? Statement will be used for select and non-select. Yes. तो ये दोनों के लिए यूज होगा, सिलेक्ट के लिए भी और नॉन सिलेक्ट के लिए भी, है ना? तो स्टेटमेंट भी सिलेक्ट के लिए यूज होगा, स्टेटमेंट विल बी यूज फॉर सिलेक्ट, स्टेटमेंट विल बी यूज फॉर नॉन सिलेक्ट, एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट will also be used for select, will also be used for non select. Am I clear with this? ये समझ में आ रहा है ना पूरा? अब तक का जो किया वो समझ में आया पूरा आर्किटेक्चर? चलो, तो अभी हम जाते हैं प्रोग्रामिंग सेंस पे। अब हम जाते हैं उस स्टेप्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? स्टेप्स पे जाते हैं। किस पे जाते हैं हम लोग अभी? तो 7 स्टेप्स है जेडीबीसी के। क्या है? Are you able to see the screen? तो सबसे पहला, तो we all are familiar with this now, importing a package. So as I told you before at the start of Java कि हर पैकेज एक चैप्टर पे बेस्ड है। क्या है? हर पैकेज एक चैप्टर पे बेस्ड है, या हर चैप्टर एक पैकेज पे बेस्ड है। वाइस वर्सा विल आल्सो डू। सो इसका पैकेज कौन सा है? Which package do we have to import? There are a lot of disturbances in the background. ईशा पारिक। तो कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना सबसे पहले हमको इस चैप्टर के लिए? java.sql.star means all the classes and all the interfaces in this package. First step done. Second step करना है अपने को load and register the drivers. क्या करना है? तो ड्राइवर का ये रहेगा कि जैसा डेटाबेस वैसा ड्राइवर, जैसा डेटाबेस वैसा ड्राइवर। तो एमएस एक्सेस का ड्राइवर अलग होगा, माई एसक्यूएल का अलग, ओरेकल का अलग, पोस्टग्रेस का अलग, चारों का ड्राइवर अलग अलग होगा। तो द ड्राइवर विल टेल यू विच डेटाबेस यू आर यूजिंग। एम आई अंडरस्टूड? सो ईच। सर एक बार बोलेंगे क्या कि ड्राइवर एग्जैक्टली क्यों? ड्राइवर क्या होता है? पहले के जो सॉफ्टवेयर थे या हार्डवेयर थे एंड्रॉयड ईरा से पहले के, सो इफ यू ऑब्जर्व, let's go back, let's flash back 10 years back. Whenever you would buy a hardware, no, with that a CD would come. So if you would buy a printer, the printer manufacturer would give you a CD. तो आपको वो CD पहले इंस्टॉल करनी पड़ती थी और फिर वो प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि वो प्रिंटर के सारे ड्राइवर्स उस CD के अंदर है। अगर आप बगैर ड्राइवर इंस्टॉल करे प्रिंटर कनेक्ट करते थे तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता था। सेम थिंग विथ योर मोबाइल फोन। सो नोकिया वुड गिव यू अ पीसी सूट। व्हाट वुड नोकिया गिव यू? पीसी सूट। तो यू वुड हैव टू इंस्टॉल, दैट वुड कम इन अ सीडी, इट वुड कम इन अ सीडी। तो उसके बॉक्स के अंदर ही जहां उसका मोबाइल आने का, चार्जर आने का, हेडफोन आने के, तो साथ में एक सीडी भी आने की। उस सीडी को बोलेंगे पीसी सूट।
तो अगर आपको आपके लैपटॉप से डेटा कॉपी करना है नोकिया के मोबाइल फोन में और वाइस वर्सा, तो उस पहले वो सीडी इंस्टॉल करनी पड़ती थी, तो वो डेस्कटॉप पे एक आइकॉन देता था आपको, वो सीडी इंस्टॉल करने के बाद में ही आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते थे लैपटॉप से मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से लैपटॉप। तो उनको बोलते थे ड्राइवर्स। क्या बोलते थे उनको? Drivers. Same thing. Even for Bluetooth, you would have the driver also. Even for Bluetooth, you would have your drivers, Bluetooth drivers. Even for your webcam, you would have drivers, webcam drivers. तो ये सब पहले के पुराने OS में थे। अभी लेटेस्ट वाले OS के अंदर सारे इनबिल्ट ड्राइवर्स आते हैं। क्या सारे? Inbuilt drivers. तो आपको सिर्फ क्या करना है, USB केबल से कनेक्ट करना है बस, प्लग एंड प्ले। क्या करना है? डायरेक्टली बस, कोई आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत। तो व्हेन यू बाय अ प्रिंटर, द ड्राइवर्स ऑफ द प्रिंटर आर ऑलरेडी देयर इन योर OS, विंडोज 7, विंडोज 10 में वो ड्राइवर्स पहले से उन्होंने डाल दिए हैं। तो आपको सिर्फ वो कनेक्ट करना है और वो डिटेक्ट कर लेगा और वो काम शुरू कर देगा हार्डवेयर। तो वैसे ही डेटाबेस की भी ड्राइवर आते हैं। क्या आते हैं? Database driver. तो अगर आपको उस डेटाबेस में डेटा सेंड और फेच करना है, स्टोर और फेच करना है, तो आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम को उसका ड्राइवर बताना पड़ेगा ताकि प्रोग्राम को मालूम पड़े कि मुझे कहाँ सेव करना है। बिकॉज इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल दैट ऑन द सेम मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मशीन में एक्सेस भी है, MySQL भी है, ओरेकल भी है, तीनों भी है मेरे पास। तो मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, हाउ विल द जावा प्रोग्राम कम टू नो? तो मैं जो ड्राइवर स्पेसिफाई करूंगा उससे उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे कहाँ सेव करना है, MySQL में सेव करना है कि एक्सेस में करना है कि ओरेकल में करना है। समझ में आया? हाँ सर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका डेटाबेस शॉर्टलिस्ट करना है और हर डेटाबेस का एक सेपरेट ड्राइवर होता है। डेटाबेस बदलेगा, ड्राइवर बदलेगा। मैंने शायद नीचे कुछ अगर मैंने ड्राइवर्स बताए होंगे, I'll fetch some drivers for you. Wait. मैंने जो आपको अभी फाइल शेयर किए हैं अभी आपको चैट पे, हेलो, उसमें कनेक्शन नाम का देखो, कनेक्शन नाम का एक है ना, वो ओपन करो। तो कौन सा वाला? कनेक्शन नाम से। हाँ सर। या उसमें रहेगा शायद ड्राइवर टाइप्स। हाँ देखो इधर। हाँ है सर। है ना? तो अगर आपका RDBMS मीन आपका डेटाबेस इंजन क्या है, यहाँ दिख रहा है? हाँ। क्या है? MySQL. तो उसका ड्राइवर कौन सा है? JDBC.driver. पूरा ये पूरा स्ट्रिंग com.mysql.jdbc.driver. और अगर आपका डेटाबेस ओरेकल है तो oracle.jdbc.driver. और अगर आपका डेटाबेस एक्सेस है तो sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर। और अगर पोस्टग्रेस है तो org.postgresql.driver. तो इसके लिए आपको पहले शॉर्टलिस्ट करना है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस यू हैव टू रजिस्टर द ड्राइवर। Am I understood? That would be your step number 2. तो उसके लिए एक क्लास डॉट फॉर नेम क्या है, एक इनबिल्ट क्लास है, उसका नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? इंग्लैंड इज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, राइट? इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट, जहाँ से क्रिकेट ओरिजिन हुआ। यू हैव सीन लगान, तो द ब्रिटिशर्स वुड प्ले क्रिकेट। तो उनका एक अभी क्रिकेट कैप्टन ने रिटायर किया है। द क्रिकेट कैप्टन नेम वाज कुक, एलिस्टर कुक। नाम मालूम है? हाँ, तो अगर वो एलिस्टर कुक, अभी नाउ ही इज रिटायर्ड, नाउ दिस एलिस्टर कुक इज
working in a 5-star restaurant and he is the chef over there. He is the शेफ. तो कोई गेस्ट आया, उसको खाना पसंद आया, तो उसने बुलाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द कुक, तो क्या बोलेंगे वो लोग? तो कुक का नाम ही कुक है. तो ऐसे ही क्लास का नाम क्या है? क्लास. हाँ, क्लास का नाम ही क्लास है. उसका एक मेथड है फॉर नेम. मेथड क्या है? और उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको ड्राइवर देना है. तो मैं कौन सा ड्राइवर यूज कर रहा हूं? इधर देखो, ये कौन सा ड्राइवर है? ये एक्सेस का ड्राइवर है. किसका ड्राइवर है? एक्सेस का. तो हम डेटाबेस चेंज करेंगे तो ड्राइवर चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा. सिर्फ डबल कोट्स के अंदर जो चीज है वो चेंज होगी. सो इफ आई वांट टू स्विच टू MySQL, व्हाट विल आई डू? I will just go to just copy MySQL ड्राइव. तो मैंने आपको सारे ड्राइवर शेयर कर दिए हैं. I will just copy MySQL का ड्राइवर. I will just copy this and paste it over here. तो सिर्फ ड्राइवर बदलेगा. सिर्फ क्या बदलेगा? ड्राइवर बदलेगा. समझ में आ रहा है? ये था स्टेप 2. ये क्या था? स्टेप 3 है क्रिएटिंग अ कनेक्शन. क्रिएटिंग अ कनेक्शन. और उसमें जो है ड्राइवर मैनेजर नाम से एक क्लास है, उसका एक मेथड है गेट कनेक्शन. क्या मेथड है? गेट कनेक्शन. ये एक स्टैटिक मेथड है. तो स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं ना. तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. देखो गाइस, स्टेप 1 2 3 आर फिक्स्ड. स्टेप 1 2 3 है ना, फिक्स्ड है. ये चेंज नहीं होंगे. ये लर्न बाय हार्ट है. ये क्या है? लर्न बाय हार्ट. तो अगर, क्योंकि योर डेटाबेस विल नॉट चेंज. if you have to do 50 programs of database connectivity, for all those 50 program database will be same. Yes or no? Yes. The package will be same, database will be same and the connection will be same. तो ये फर्स्ट 3 जो है ना, ये लर्न बाय हार्ट है. तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में थोड़ा दिक्कत दे रहा है. हमने एक बार प्रोग्राम कर लिया तो आपको ये लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा. तो कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस है. क्या नाम का? We are familiar with these terms, no? We have done connectivity in VB6, haven't we? Yes, sir. तो कनेक्शन नाम का इंटरफेस है, उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाओ ऑन ड्राइवर मैनेजर डॉट व्हाट इज द फंक्शन नेम. और इसके अंदर डबल कोट्स में डेटाबेस का नाम डाल दो. क्या डाल दो? बस, एज सिंपल एज दैट. तो आर द फर्स्ट 3 स्टेप्स क्लियर? Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? Import package. सेकंड स्टेप क्या है? और थर्ड स्टेप क्या है? Connection. क्रिएट कनेक्शन. ठीक है, ओके. अभी इसमें जो है, इसमें एक चीज याद रख लो. अभी इसमें तुम्हारा स्टेटमेंट में और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, ठीक है. स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट पहले, स्टेटमेंट में पहले ऑब्जेक्ट फिर क्वेरी. पहले क्या? First object then query. दिस इज फॉर स्टेटमेंट. और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में इसका उल्टा करने का. Query first object. हाँ, ये बात याद रखो बस. ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा. मैं भी सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ बस आपको. तो स्टेटमेंट में क्या है? Object पहले फिर query. और प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या है? Query. वेरी गुड. एक ये चीज थी और एक दूसरी चीज है, और एक और चीज. whenever we will be using
select. Whenever we will be using select, तो select जब भी यूज करेंगे तो उसके लिए फंक्शन है एग्जीक्यूट क्वेरी. ये याद रखो बस. मैं भी बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा तुम लोगों को. क्या फंक्शन यूज करेंगे? और जब भी नॉन सिलेक्ट यूज करेंगे तो उसके लिए फंक्शन है एग्जीक्यूट अपडेट. क्या है? एग्जीक्यूट अपडेट. ठीक है. तो जब भी सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट नेचर की रहेगी तो क्या रहेगा? और नॉन सिलेक्ट की रहेगी तो क्या रहेगा? एग्जीक्यूट अपडेट. ओके. एग्जीक्यूट अपडेट will have a integer on the LHS. On the LHS क्या रहेगा? इंटीजर वेरिएबल. क्या रहेगा LHS में? और एग्जीक्यूट क्वेरी के LHS में रहेगा रिजल्ट सेट का वेरिएबल. बस. किसका वेरिएबल रहेगा? हाँ. तो ये हमारा पूरा JDBC एक फ्रेम में आ गया. तो अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो आपको JDBC 90% समझ में आ गया. ये समझ लो आप. तो रिजल्ट सेट जो है ना सिलेक्ट क्वेरी में काम आता है. बस जब हम करेंगे तो यू विल कम टू नो. अभी सिस्टम में आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरलाइन, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू तुमको कि वो कब काम में आता है. रिजल्ट सेट सिर्फ काम में आएगा कब? जब क्वेरी किस नेचर की होगी? सिलेक्ट नेचर की. बस. और नॉन सिलेक्ट के अंदर तो फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी इज फॉर सिलेक्ट एंड फॉर नॉन सिलेक्ट इट इज एग्जीक्यूट अपडेट. एग्जीक्यूट अपडेट के LHS में क्या रहेगा? इंटीजर वेरिएबल. और एग्जीक्यूट क्वेरी के LHS में क्या रहेगा? ठीक है. वेरी गुड. बस ये बात याद रखो बस तुम लोग. अब आ जाओ वापस वो स्टेप्स पे आ जाओ. कहाँ गए वो स्टेप्स? कहाँ चले गए? So these are the steps. So let's start from the top. First 3 steps clear? तो और अभी आपको अगर मैं क्वेरी बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं ये वाला प्रोग्राम लिखना है अपने को, वी हैव टू डू दिस प्रोग्राम, दिस वन, कि 101 एलिस और 800 इंसर्ट करना है डेटाबेस में. तो 101 एलिस और 800. Okay, now I'll show you how to create a database. I'll just stop this recording over here. इंट्रोडक्शन में बहुत हो गया इसका.